Us about the how to draw the TS diagram for Rankine cycle. So TS diagram for Rankine cycle. तो आप लोगों ने देखा रैनकाइन साइकिल में हमारे कंपोनेंट थे, वन इज योर बॉयलर, सेकंड वन इज योर टरबाइन, तो टरबाइन में आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, थर्ड वन इज योर कंडेंसर एंड फोर्थ वन इज योर पंप। तो यहाँ से पंप के थ्रू आपका, तो दिस इज माय पंप वर्क डन। तो आफ्टर बॉयलर वी हैव न सुपर हीटेड स्टीम, हियर वी हैव न सुपर heated steam, superheated steam. This is my 1, 2, 3 and 4. This one is your soft power, और soft power turbine जो है जनरेटर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। So this is my reversible adiabatic process in turbine. यहाँ से आपको टर्बाइन वर्क डन मिलता है, टर्बाइन वर्क डन। The heat reaction take place in the condenser. So here we have a superheated steam. Here is your liquid plus vapor. After condenser we have a liquid, and this is liquid line and superheated steam, clockwise cycle. So how to draw the TS diagram? In TS diagram we will represent like this. This is my T into S diagram. Area under any process in TS diagrams gives you the quantity of heat. So this is my two-phase dome. So this is my above, this one is your my boiler pressure line. So area under the boiler pressure line, the quantity of heat addition take place. This is my boiler pressure line and this is my condenser pressure line. So this is my turbine, the expansion of the steam in turbine, reversible adiabatic process. So this is my 1, 2 and 3 and 4. So the heat addition take place in boiler at constant pressure and within the dome at the constant pressure and temperature. So inside the dome this line is your constant pressure line and constant temperature line, and outside is your constant pressure. This is your constant pressure. So heat addition यहाँ पर आपका heat supplied होगा, and the heat reaction also take place at the constant pressure. तो हीट रिएक्शन यहाँ पर हमारा जो होगा कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर. दिस इज माय टरबाइन वर्क डन WT. तो आइसेंट्रोपिक है, सो एंट्रोपी S1 इज इक्वल टू S2, एंड दिस इज माय पंप वर्क डन WP, पंप वर्क डन, और ये साइक्लिक प्रोसेस है क्लॉकवाइज. सो in this way you may draw the TS diagram for Rankine cycle. So area under this curve, so the area under the boiler pressure lines will give you the quantity of heat supplied for boiling the for steam generations to the boiler. Now the QR represent the quantity of heat reactions in the condensing process. WT means the turbine work done, or due to the expansion of the steam we get the turbine work done, and this is the pump work done. So this is very important cycle. So now how to find out the enthalpy? How to find out the enthalpy for Rankine cycle? Suppose this is my TS diagram. This is my TS diagram for Rankine cycle, two-phase dome. This is the boiler pressure line and this one is my condenser pressure line. So this is my work done WT and this is your pump work done WP. Here is the point number 1, 2, 3 and 4. So how to find out the enthalpy H1? So enthalpy H1 with respect to super heated steam टेबल आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. नाउ H2 इज नथिंग बट दिस इज माई HF2 प्लस X टाइम्स ऑफ HFG2, F फॉर द फ्लूइड, ठीक है, और G फॉर द गैस. तो यहां पर स्टीम टेबल में सैचुरेटेड स्टीम टेबल में जाएंगे. सैचुरेटेड स्टीम टेबल की हेल्प से
HF2 मीन्स ये वाटर की होगी वहां पर, और प्लस X टाइम्स ऑफ HFG2 मीन्स एवोपरेशंस, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशंस, वेपोराइजेशन। तो आप देखेंगे स्टीम टेबल में, हमारे पास स्टीम टेबल में कुछ इस तरीके से होगा, पहले टेम्परेचर होगा, फिर प्रेशर होगा, फिर यहाँ पर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम के टू कंपोनेंट होंगे, वन इज योर वी सफिक्स एफ एंड सेकंड इज योर वी जी। तो वी सफिक्स एफ के नीचे वाटर लिखा होगा और यहाँ पर आपका स्टीम लिखा होगा। सिमिलरली तो ये वी सफिक्स एफ मीन्स विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड एंड जी फॉर द गैस। सिमिलरली स्पेसिफिक एंथैल्पी होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी के भी दो कंपोनेंट हो गए, वन इज योर एच एफ और सेकेंड आपका एच जी होगा। तो दिस इज वाटर, यहाँ पर वाटर लिखा होगा और इसके नीचे आपका यहाँ पर स्टीम लिखा होगा। सिमिलरली स्पेसिफिक एंथैल्पी स्पेसिफिक एंट्रोपी के लिए होगा। तो इसी तरीके से एस एफ और एस जी होगा। और एक और लाइन होगी आपका एंथैल्पी ऑफ ये आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशंस। तो यहाँ पर आपका ये देखेंगे तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ पहले टेम्परेचर है, फिर प्रेशर है, फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसके दो कंपोनेंट आ गए, स्पेसिफिक एंथैल्पी आ गई, एंथैल्पी के टू कंपोनेंट, और फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में आप देखेंगे स्टीम टेबल में तो HFG2 होता है, और फिर स्पेसिफिक एंट्रोपी होगा टू कंपोनेंट के साथ। तो ये स्टीम टेबल से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द H3। नाउ टू फाइंड आउट द H3 use the TDS equation, T into DS is equal to DH minus V dP equations. For reversible adiabatic process it is 0, so DH minus V into dP. Now integrate it from 3 to 4, so from here H4 is equal to H3 and this is V3 and V4 P4 minus P3. So from here H4 is equal to H3, or this you may write HF3 and this you may write PV minus PC, condenser pressure. So H4 is nothing but this is HF3 plus VF3 PV minus PC. So यहाँ से आप निकाल लेंगे H4 क्या है, ये आपका H4 एंथैल्पी एट द कंडेंसर प्रेशर एट द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, यहाँ पर निकलेगा। ये स्पेसिफिक आपका वॉल्यूम है एट द कंडेंसर प्रेशर पर, PV बॉयलर प्रेशर है और PC कंडेंसर प्रेशर है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे H4, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे H4 निकालना है, कैसे H3 निकालना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। HF3 हमारा क्या है, H3 इज नथिंग बट दिस इज माई HF3 एट द कंडेंसर एट PC और कंडेंसर प्रेशर। तो ये आपको मालूम हो जाना चाहिए कैसे हम लोग निकालते हैं एंथैल्पी, ठीक है। Now I will discuss about the Rankine cycle, how to find out the efficiency of the Rankine cycle. तो efficiency of Rankine cycle. तो Rankine cycle की efficiency कैसे निकालते हैं? First of all, you will draw the TS diagram. Like this is my T and this is my S. Now two-phase dome, we have a two-phase dome. So this is my above is your boiler pressure line and this is my condenser pressure line. This is the reversible adiabatic process और turbine work done 1 2. यहाँ पर आपका heat rejection in condenser at the constant pressure, Q reactions 3, and this is 4. The heat supply take place to the boiler at the constant pressure. So inside the dome pressure and temperature both constant, outside pressure is constant, here is also pressure constant. So Rankine cycle efficiency is nothing but according to
first law of thermodynamics, QS minus QR over heat supplied, or you may write turbine work done minus pump work done over heat supplied. ये मेरा turbine work done, clockwise cycle. Now you can write heat efficiency of the Rankine cycle heat supplied 1 minus QR over QS, or 1 minus Q heat rejection is my H2 minus H3 over heat supplied H1 minus H4. तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ टर्बाइन वर्क डन लिखना चाहते हैं तो WT क्या है, H1 माइनस H2, H1 माइनस H2, पंप वर्क डन यहाँ पर निकलेगा H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड H1 माइनस H4, ये जो आपके जाएगी हीट सप्लाइड आएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी। अब H1 क्या है, H1 आपका विद रेस्पेक्ट टू द सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम टेबल से निकालेंगे। और H2 मैंने आपको बताया है ये आपका HF2 एट कंडेंसर प्रेशर, H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X टाइम्स ऑफ HFG2 हो जाएगा। X हमारा क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्टीम दिखाता है। और H3 इज नथिंग बट दिस इज माई HF3 एट कंडेंसर प्रेशर। तो ये भी PC पर है और ये भी PC पर है, और ये वाला हमारा बॉयलर प्रेशर पर है। और H4 आपको मैंने बता दिया, H4 इज इक्वल टू HF3 प्लस BF3 प्लस PV माइनस PC आता है। तो इस तरीके से आप ये चारों वैल्यू निकालेंगे तो आप रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द स्टीम रेट पर यूनिट शाफ्ट पावर। तो स्टीम रेट पर यूनिट शाफ्ट पावर, स्टीम रेट पर यूनिट शाफ्ट पावर इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं शाफ्ट पावर हमें निकालना है। तो शाफ्ट वी नो द शाफ्ट पावर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू WT माइनस WP, ये नेट आएगा। तो यहाँ से आपका मास फ्लो रेट पर यूनिट शाफ्ट पावर आपका जाएगा 1/WT माइनस WP, ये आपका आएगा किलोग्राम पर किलोवाट, ठीक है, ये पर सेकेंड है। तो अब इसको आपको कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 1/WT माइनस WP, ठीक है, किलोग्राम को किलोवाट, सेकेंड को आपने आवर्स में बदल दिया तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3600, दिस इज किलोग्राम। तो आपका आ जाएगा स्टीम रेट पर यूनिट शाफ्ट पावर इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई WT माइनस WP। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टीम रेट के लिए और स्टीम फ्लो रेट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज क्वांटिटी ऑफ या हीट रेट पर यूनिट शाफ्ट पावर is equal to, this is nothing but this is heat supplied minus and steam rate per unit शाफ्ट पावर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा हीट सप्लाइड माइनस 3600 डिवाइडेड बाई WT माइनस WP, और 3600 ओवर you write WT माइनस WP ओवर हीट सप्लाइड। दिस इज नथिंग बट दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। तो ये कुछ फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन टू यू हाउ टू ड्रॉ द TS diagram, and TS diagram area under any process, the area under the any process that will give you the quantity of heat supplied or heat reactions.
So in this way you may calculate the Rankine cycle efficiency, steam rate or heat rate. Okay, thank you.